السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کے اس لیکچر میں سیکنڈ ایئر کے ایم سی کیوز کے حوالے سے بچوں بات کریں گے، سال دوم کے ایم سی کیوز کے حوالے سے بچوں بات کریں گے۔ رموز اوقاف یعنی علامتوں کا نظام، اس کو بیٹا مختصر یہ کہتے ہیں جب ہم عبارت پڑھتے ہیں، جملے پڑھتے ہیں، کہیں بھی کوئی اردو میں لکھی ہوئی عبارت یا نثر پارہ بچوں پڑھتے ہیں، تو ہم پڑھتے وقت ظاہر سی بات ہے ہم نے کہیں پہ حیرت کا کیا کہتے ہیں اظہار کرنا ہے، کہیں پہ رکنا ہے، کہیں پہ ہم نے زیادہ عبارت کو پڑھتے ہوئے کہیں پہ زیادہ رکنا ہے، کہیں پہ کم رکنا ہے، کہیں پہ بیٹا ہم نے حیران ہونا ہے، کہیں پہ سوال پوچھنا ہے۔ تو مختلف بیٹا جگہوں پر ہم نے مختلف کیا کہتے ہیں نا اپنا رویہ رکھنا ہے۔ تو اس رویے کے لیے بیٹا وہاں پہ ان رویوں کو برقرار رکھنے کے لیے، عبارت کو صحیح طریقے سے بیٹا پڑھنے کے لیے رموز اوقاف علامتوں کا نظام بیٹا، یہ نظام آپ کو سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ عبارت کو اچھے سے لکھ سکیں، یا آپ عبارت کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پڑھنے کا صحیح انداز آ جائے۔ بیٹا پہلا آپ کا ہے سکتہ یا وقفہ خفیف۔ کچھ علامتیں ہیں جو اس کے لیے بیٹا مختص ہیں۔ آپ کے سیکنڈ ایئر کے بک جو ہے، کتاب جو ہے بیٹا اردو کی، اس کے صفحہ نمبر 25 یا 26 پہ بیٹا یہ علامتیں کچھ ہیں، وہاں سے ان کے نام بھی یاد کر سکتے ہیں، یہاں سے بیٹا دیکھ سکتے ہیں سکتہ یا وقفہ خفیف۔ سکتہ یا وقفہ خفیف کہتے ہیں بیٹا آپ عبارت کو، جملے کو پڑھتے ہوئے اگر مختصر کہیں رکتے ہیں، تھوڑا سا کہیں رکتے ہیں بیٹا، اس علامت کو وقفہ خفیف کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کوئی جملہ پڑھ رہے ہیں تو آپ مختصر سا رکتے ہیں، یعنی پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا رک جانا بیٹا، اس کو سکتہ یا وقفہ خفیف کہتے ہیں۔ نیچے بیٹا میں نے مثالیں دی ہیں: کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ پاکستان کے شہر ہیں بیٹا۔ اگر کسی جملے میں بیٹا ایک دوسرا یہ کہ اگر کسی جملے میں چیزوں کے نام، لوگوں کے نام، جگہوں کے نام بیٹا زیادہ آ جائیں، تو آپ نے جتنے نام ہیں، جیسے ایک کراچی، ایک، دو، یہ تین، یہ چار، پانچ، چھ نام ہے بیٹا، یہاں پہ شہروں کے کتنے نام ہیں؟ چھ۔ تو آپ نے چھ نام ہے بیٹا، چھ سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آخری جو نام ہے اس سے پہلے بیٹا آپ نے چھ ناموں میں سے آخری نام سے پہلے بیٹا کیا کرنا ہے؟ لفظ اور لگانا ہے۔ اس سے پہلے جہاں بھی بیٹا لگے گا آپ کا یہ سکتہ یا وقفہ خفیف لگے گا۔ اب یہ تو بیٹا شہروں کے نام ہے۔ اب اس میں یقول بیٹا یہاں سے تقریباً چار نام ہے، اور اکرم ہے، انور ہے، اسلم اور احمد بیٹا۔ تو اگر جملے میں لوگوں کے نام بھی زیادہ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ وہاں بھی بیٹا سکتہ لگائیں گے، اور آخری نام سے پہلے بیٹا کیا لگائیں گے؟ اور لفظ لگائیں گے۔ اب اس کے بعد بیٹا یہاں پہ نا عمارتوں کے نام ہیں: شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مقبرہ جہانگیر، شالامار باغ اور عجائب گھر لاہور کے تاریخی مقامات ہیں بیٹا۔ تو یہاں بھی جگہوں کے نام زیادہ ہیں تو بیٹا تو ہم آخری جگہ سے پہلے لفظ اور لگائیں گے بیٹا۔ ایک بات یاد رکھیں، مختصر رکنے کے لیے ایک تو یہ، اور مختصر وہاں رکتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے نام، جگہوں کے نام، چیزوں کے نام بیٹا کسی بھی جملے میں کوئی بھی اسم ہے، کوئی بھی ناؤن ہے بیٹا، نام ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ پڑھتے ہوئے رکیں گے، اور آخری اسم سے پہلے بیٹا کیا لگائیں گے؟ اور اس سے پہلے جتنے بھی اسم بیان ہوں گے ان کے درمیان بیٹا آپ کیا لگائیں گے؟ یہ سکتہ لگائیں گے، یہ آپ اردو والا بچوں کوما لگائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد بیٹا آپ کا آگے ہے وقفہ یا نصف وقفہ۔ بیٹا اس کی علامت یہ ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے علامتوں کے نام بھی یاد رکھنے ہیں، علامتوں کی تعریفیں بھی یاد رکھنی ہیں۔ علامتیں دے کر بیٹا آپ کو نام بھی پوچھا جا سکتا ہے، نام دے کر آپ سے علامت بھی پوچھی جا سکتی ہے، آپ کو تعریف دے کر اس کا بیٹا نام بھی پوچھا جا سکتا ہے علامت کا، یا پھر آپ کو بیٹا جملہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس میں کون سی علامت استعمال ہوگی بچوں، آپ نے وہ اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ آپ نے ہر لحاظ سے بچوں اس کو تیار کرنا ہے: نصف وقفہ یا وقفہ۔ اب دونوں بیٹا اس کے نام ہے، دو دو نام ہے تو دو دو نام یاد رکھیں۔ جہاں سکتہ سے زیادہ بیٹا رکنا ہو، سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہو بیٹا، وہاں پر یہ علامت آئے گی: جیسا کریں گے، جو کرے گا سو بھرے گا۔ اب دیکھیں نا، جو کرے گا سو بھرے گا، اس میں ہم سکتہ سے زیادہ رک رہے ہیں، ایک تو بیٹا یہ، اور جہاں پر بچوں ایک ہی موضوع، ایک ہی خیال، ایک ہی مفہوم کے متعلقہ جملے میں باتیں زیادہ لانی ہوں، جملے میں باتیں زیادہ کرنی ہوں بیٹا، دیکھیں جو کرے گا سو بھرے گا۔ اب دونوں ٹکڑوں کا تعلق بیٹا، ایک حصہ یہ فرض کیا، ایک حصہ بیٹا یہ، دونوں کا تعلق آپس میں ہے، یعنی ایک ہی اظہار کا، ایک ہی طرز کا، ایک ہی بیٹا خیال کا، یا ایک ہی موضوع کا جو دو حصے ہوں گے جملے میں، دونوں کے درمیان بیٹا یہ علامت آئے گی: جو کرے گا سو بھرے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب اچھا، ایک تو مثال بیٹا یہ ہو گئی۔ اب ایک ہی جملے کو بڑا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے متعلقہ چیزیں لکھتے ہیں اور درمیان میں بیٹا یہ علامتیں لگاتے ہیں: لاہور کا پنجاب، کراچی کا سندھ، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا، اور پشاور۔ اب اس میں بھی بیٹا آخری سے پہلے آپ نے او لگانا ہے: بلوچستان کا، اور پشاور خیبر پختونخوا کا،
दारुल हुकूमत है। अब बेटा यहाँ पे बताए जा रहे हैं दारुल हुकूमत। अब इस जुमले में सिर्फ दारुल हुकूमत की बात है, एक ही मौजू के मुतल्लिक़ बात है, सारे दारुल हुकूमत बेटा बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा एक ही जुमले, एक ही मौजू के मुतल्लिक़ जुमले में बात को बड़ा करने के लिए बेटा हमने ये अलामतें लगाई। उसके बाद बेटा वक्फ़ा लाजिम या वक्फ़ा राबिता या वक्फ़ा बेटा लाजिमत है। अच्छा, ये बेटा तब आता है जब हमने पहली चीज़ का ताल्लुक दूसरे के साथ कायम करना है। मिसाल के तौर पे सच है, क्या सच है बेटा, इस अलामत में क्या करेंगे, इस अलामत के बाद हमने बताना है सच क्या है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब फरमान कौन सा है बेटा, ये अलामत हमने लगाई और इसके बाद हमने ये आगे उसके फरमान लिख दिया। तो इस अलामत का मतलब होता है बेटा एक चीज़, पहली चीज़ का दूसरे के साथ सामने ताल्लुक काम करवाना। मिसाल के तौर पे आप साल अव्वल फर्स्ट ईयर में लिखते थे मुकालमा, उस मुकालमा में बेटा आप क्या करते थे, आप लिखते थे असद अस्सलाम वालेकुम। और असद के बाद बेटा आप ये दो डॉट लगाते थे, ये अलामत राबिता या वक्फा लाजिम की लगाते थे बेटा, और सामने नाम लिखते थे। तो इस अलामत का मतलब होगा पहले का दूसरे के साथ बेटा ताल्लुक। अच्छा, उसके बाद बेटा आप नीचे देखते हैं खत्मा या वक्फे मुतलिक। अच्छा, वक्फे मुतलक या खत्मा बेटा, खत्मा कहते हैं जब बात मुकम्मल हो जाए, जहाँ इंग्लिश में बेटा इसे हम कहते हैं फुल स्टॉप कहते हैं। जहाँ बात मुकम्मल हो जाए, बात पूरी हो जाए बेटा, ये वहाँ पर आएगा। मिसाल के तौर पे अल्लाह एक है, जुमला बेटा मुकम्मल हुआ, जुमला पूरा हुआ, बात पूरी हुई, तो इसके बाद खत्मा आ जाएगा। अच्छा, क़यामत के दिन हिसाब होगा बेटा, जुमला पूरा हुआ, इसके आखिर में आ जाएगा। नमाजें 5 वक्त फ़र्ज हैं, या 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है बेटा, जुमला मुकम्मल हो इसके आखिर में आया। तो यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है, आज मेरी तबीयत ख़राब है, आप कल तशरीफ़ लाएं बेटा, बात मुकम्मल हुई। अच्छा, इसमें बेटा दो जुमले हैं, आज मेरी तबीयत ख़राब है, आप कल तशरीफ़ लाएं, दो जुमले हैं, लेकिन बेटा बात कहाँ मुकम्मल है, आखिर में मुकम्मल है। आज ईद का दिन है बेटा, बात मुकम्मल हो गई, यहाँ पे आ गया। हर तरफ चहल पहल है, यहाँ भी बेटा बात मुकम्मल हो गई, यहाँ भी ख़त्म आ गया। अच्छा बच्चों, एक तो ख़त्मे यहाँ आते हैं, दूसरा बेटा मुखफ़फ़ात। मुखफ़फ़ात से मुराद, जैसे आप लिखते हैं MAPHD, इस तरह के बेटा जो एब्रीवेशन हैं, जो शॉर्टकट हैं, जो आप शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, उसमें बेटा इस तरह के ख़त्मे आते हैं। जैसे MA हो गया, MBBS आपने देखा होगा इंग्लिश में कहीं लिखा हुआ, वहाँ पे MBBS के बाद बेटा आपको ना फुल स्टॉप मिलेगा दरमियान में लगा हुआ। अगर वो हम उर्दू में बात करेंगे MBBS की बेटा, वहाँ पे ख़त्मा लगाएंगे हम। तो ख़त्मा एक तो बेटा बात मुकम्मल होने के बाद वहाँ पे इस्तेमाल होगा, दूसरा बेटा जहाँ मुखफ़फ़ात हैं बेटा, एब्रीवेशन है बेटा, वहाँ पे हम ये इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बेटा सवालिया यानी बात पूछना, इसी का दूसरा नाम है इस्तफ़हामिया, इसी का बेटा और नाम है इस्तफ़हाम। इस्तफ़ाम सवालिया, सवाल इस्तफ़ाम सवालिया, इस्तफ़हामिया या इस्तफ़ाम बेटा, ये होता है जहाँ आपने बात पूछनी हो, जहाँ आपने बात दरियाफ्त करनी हो, जहाँ बेटा आपने सवाल पूछना हो। जैसे क्या आप कराची जा रहे हैं, इसमें बेटा क्या सवालिया लफ्ज़ है। क्या हम मैच जीत रहे हैं बेटा, ये सवालिया लफ्ज़ है। इसमें क्या लफ्ज़ है, ये सवालिया है। आपको कौन सा, अब कौन बेटा जो लफ्ज़ है, कौन सा बेटा, ये सवालिया लफ्ज़ है। आप लाहौर से कब, अब इसमें लफ्ज़ भी जो बेटा लफ्ज़ है जो कब, ये सवालिया लफ्ज़ है। लेकिन बेटा इसकी जो अलामत है बेटा, आपने वो याद रखनी, सवालिया ये। वो ज़्यादातर बेटा अगर उसने सवालिया पे बात पूछनी होती है, तो एक तो वो जुमला देता है, या फिर बेटा वो इस्तफ़हाम या इस्तफ़ामिया लफ्ज़ देता है। इससे बेटा आपकी वो शनाख्त करवाने की कोशिश करता है, और इस तरह वो MCQs पूछता है। इसके बाद बेटा आपके आता है तफसीलिया। तफसीलिया आता है जहाँ बात को अपने डिटेल से बयान करनी हो, जहाँ बात को अपने वजाहत से बात बयान करनी है बेटा। अब तफसीलिया की अलामत बेटा देख लें, राबिता की अलामत के साथ आपने एक ख़त्मे का इस्तेमाल देखा होगा, ये बेटा तफसीली की अलामत है, जहाँ बात की आपने डिटेल वजाहत देनी हो बेटा, वहाँ पर। मिसाल के तौर पे आप लफ्ज़ अपने पेपर में लिखते हैं तशरीह, तशरीह के बाद बेटा तफसीलिया की अलामत आती है। उसके बाद मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं। अच्छा, ये यहाँ तो बेटा नहीं आएगा माजर। अच्छा, आप लिखते हैं लफ्ज़ जो पेपर में, तशरीह वहाँ आ जाएगा। या आप बेटा जब छोटी क्लासों में थे, 5वीं में, छठी में, 6 में, तो बेटा आप क्या करते थे, आप ना मज़ामीन लिखते थे, वहाँ लिखते थे आप अल्लामा इकबाल की जो तालीम लिखते थे, उनकी मुलाजमत लिखते थे, उनकी शायरी के बारे में लिखते थे। तो आप बेटा वो एक मुख्तसर सी हेडिंग देने के बाद बेटा आप क्या करते थे, उसके आगे ये तफसीलिया की अलामत लगाते थे बेटा। ये हमेशा हम वहाँ लगाएंगे जहाँ बात की वजाहत देनी हो। वर्जिश के दर्ज झैल फ़ायदे हैं, अब फ़ायदे बेटा बेशुमार है, इसमें हमने डिटेल से बात करनी है, तो यहाँ बेटा आ जाएंगे। तो इस तरह ये अलामत वहाँ आएगी जहाँ आपने बात की वजाहत देनी हो। इसके बाद बेटा आ गया कोसैन।
मैथ में से छोटी ब्रैकेट क्या देते हैं बेटा, कोसेन। आपने देखा होगा जुमला लिखा हुआ है, जुमले के दरमियान में कहीं भी ऐसे छोटी ब्रैकेट का बेटा इस्तेमाल होता है, और छोटी इस ब्रैकेट में कोसेन में बेटा वो मालूमात आती हैं जो अजाफी होती हैं। मिसाल के तौर पे चौधरी असलम आजकल डॉक्टर हैं, हमने पूछना या हमने बताना तो यही है कि वो डॉक्टर है, लेकिन दरमियान में बताया है जो मेरे हम जमात थे। तो बेटा ये जो ब्रैकेट में कोसैन में ये जो मालूमात होती है ना, ये अजाफी होती है। तो कोसैन कहते हैं जुमले के दरमियान होने वाली जो ब्रैकेट है, जो जुमले के दरमियान होने वाली ये अलामत है, ऐसे कहते हैं बेटा कोसैन। आगे है जुमला मोतरजा भी बेटा यही होता है कि जो जुमले के दरमियान में अजाफी इबारत होती है, इसको बेटा जुमला मोतरजा कहते हैं। उसके बाद बच्चों आपकी अलामत आ गई वावैन। वावैन को इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ये बेटा वहां पर आएगा जहां आपने किसी का कौल नकल करना हो, किसी की इबारत नकल करनी हो, कुरान पाक का तर्जमा, हदीस पाक का तर्जमा, बेटा वहां पर ये वावैन हम लगाते हैं। इसके बाद बेटा आपकी आ गई निदाइया फिजाइया। निदा कहते हैं आवाज़ को, पुकारने को। जहां आपने किसी को पुकारना है, जहां आपने किसी को कॉल करनी है, मिसाल के तौर पे मोमनो, दोस्तों, अजीज़ों, बच्चों। उसके बाद आप किसी टीचर को मुखातब करते हैं, आप कहते हैं सर। जब बेटा आपने किसी को पुकारना हो तो पुकारने के लिए जो अलामत है बेटा वो निदाइया, उस अमल को कहते हैं निदाइया। और उसकी अलामत बेटा यही है, अगर आपने कहीं पे गम का, दुख का, खुशी का इजहार करना है बेटा, उस अमल को, उस कैफियत को कहते हैं फिजाइया। आपने बेटा दोनों की तारीफें अलग अलग याद रखनी। निदाइया कहते हैं पुकार को, फिजाइया कहते हैं गम या खुशी की कैफियत को। अब हम बेटा पुकारने के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप कहते हैं सदर जी वकार, जब आपने उसको पुकारा है तो बेटा अब इस अमल को कहते हैं निदाइया। अब यही जुमला देके हम मैं कहूँगा यहाँ पे अलामत आएगी बेटा, अलामत तो यही आएगी, लेकिन अलामत का नाम भी आगे दिया जा सकता है। अच्छा फिजाइया में आपने देखा होगा आहा, ये हम तब लगाते हैं जब गम का इजहार हो। हाय, ये हम तब लगाते हैं जब गम का इजहार हो बेटा। खबरदार ये हम तब लगाते हैं जब हम किसी काम से रोक रहे हैं। अफसोस ये हम तब लगाते हैं जब गम की कैफियत हो। जब आप कहते हैं वाह, वाह तब करते हैं जब बेटा आप खुशी की कैफियत में हैं। जब हम कहते हैं आह तो हम बेटा गम की कैफियत में हैं। तो गम और खुशी की कैफियत के लिए फिजाइया। एक होता है बेटा इस्तजाबिया। इस्तजाबिया कहते हैं जब हमने कहीं हैरत का इजहार करना है, हैरत के लिए बेटा हमने बोलना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई बात बताता हूँ, आप कहते हैं ये कब हुआ। अब यहाँ पर जो लफ्ज बेटा आपने हैं बोला है, ये हैरत के लिए है। क्या, अब यहाँ पे शुरू में जो लफ्ज बेटा आपने क्या बोला, ये हैरत के लिए। तो जुमला बताएगा ये लफ्ज हैरानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये लफ्ज सवालिया के लिए इस्तेमाल हो, या किसके लिए बेटा हो रहा है। उसके बाद बेटा आपका खत। खत आएगा जब आपने कहीं पे इबारत को आपने थोड़ा वाज़ेह करना हो, थोड़ा बेटा आपने उसको अहम साबित करना हो या अहम करना हो बेटा, वहां भी आएगा। इस अलामत का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब किसी जुमले में जुमला मोतरजा या वजाहत अल्फाज को अलग और नुमाया करना हो, यानी जिनकी आपने देखे ना, आपने कहीं भी किसी भी जुमले में कहीं बेटा आपने वजाहत देनी है, डिटेल बयान करनी है जुमले के दरमियान में, वहां आप क्या करते हैं, आप उसकी जगह पे कोसैन की जगह बेटा आप क्या करें, यहाँ पे ये आप उसकी खत की अलामत भी बेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बच्चों, ये मुख्तसर से अलामतों पर आपका ये लेक्चर था बेटा। आप अलामतों के नाम याद रखें, अलामतों के नाम के साथ उसकी पहचान याद रखें, उनका इस्तेमाल याद रखें बेटा। किसी भी तरह से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं।